Requesting 12th men of both the teams, please be in the commentary box. Already got the 12th man of Sakri. Requesting the 12th man of Vasco to be in the commentary box as well. Good evening and welcome back to Amdar Chashak Season 2 here in this Kusgao. Match between Sai Ganesh Royals, Vasco and Avish Avengers, Sakri. So Manjunath will start off the proceedings. And with the bat, it will be the heavyweight. Starts off with a good delivery. Syed Badi gets off the mark. Not off the mark, it's off the foot. So it will be a leg by is given by the umpire. Along with him is Raven Mutagi. Officials in this particular game, Sadgiri Naik and Aliston De Mello. And their partner is the third umpire. We've got Mosim Sheikh. Along with me in the commentary box, shortly will be joined by Jai Bhosle sir. Just trying to carve it over back at a point on the bounce to the fielder at back at point. Dot delivery nevertheless. 5 overs game, first over mandatory power play over, where 2 fielders allowed outside the 30-yard circle. You can see all these games live on YouTube through tenniscricket.in. Pristine quality in pitch making. Good delivery again a slower delivery. Just running his fingers over. This being the municipality leg. Vasco taking on Sakri. Sakri deciding to bowl first after winning the toss. We have plenty of exciting teams, some rich bit of talent from all over Goa. That's big. And that's gone over. That man was in for a chance, but not for too long. That's 6. First maximum in this innings of Vasco. Sai Ganesh Royals. Some bit of a bat. And that puts runs on the board for Raven Mutagi. Score moves on to 7. Reverse sweep. No proper timing. Dot delivery. Excellent over coming to an end. Apart from that maximum. Superb bit of bowling. 7 coming from it after completion of 1. It's 7. 7 without loss after 1. Sai Ganesh Royals, Vasco. As we've seen over the course of 1.5 days. Yesterday it was Sheldon Blasters Sheldon. Then it was in the late night, where in the late night it was Kadamdar Dada Bandoda overpowering the Bhumika 11 Karnka. And today it was Datta Classes Asnora reaching the semi-finals. Which of these municipality teams gonna get there? Good delivery from Vishal to contain Badi. Is a big achievement itself, as he just runs through the bowling attack. Whichever the bowling, he just takes them apart. He's been quiet so far, but not for too long. We'll certainly see some firecrackers in the night sky. There you go, down the ground. And that's 4. Talking about his exploits. Gets a boundary. Gets off the mark with the 4. Does Syed Badi. Score moves on to 11.
And goes big. And goes long for 6. Just a matter of delivery in his arc, and he just puts it out of the park. No matter these are small dimensions, but this man has played it all and played it everywhere, also in Dubai. And just the power of that man taking that towards that boundary rope with utmost ease. Score moves on to 17 with that maximum. Swing missed. Looking to play it on the onside. Missed it completely. Dot delivery. Awkward position in hitting that ball. Funny for others, but not the one who is just got a delivery there in that particular area. This time swept. Matted on full. And that's 4. Just maneuvering the strike. Just knows exactly where the fielders are and placing between that gap. Excellent bit of work from Syed Badi. You'll see this kind of precision all over the park once this man gets going. Score moves to 21. Again, trying to replicate the same hit. Missed it completely. An expensive over coming to an end after completion of 2. It's 21. 21 without loss after 2 overs. 14 runs coming from it. 21 without loss after 2 overs. Sai Ganesh Royals, Vasco. Change in bowling. It will be Laksharaj in the bowling attack. 21 without loss after 2 overs. Shimmer down the wicket. And has he threaded the needle? He has. That's 4. Excellent bit of timing. Just a couple of strokes down the pitch and meeting it gratefully down the ground for 4. Score moves to 31. Runs are coming thick and fast here for the team from Vasco. Sai Ganesh Royals Vasco put into bet by the Avnish Avengers. Sakari. Need to get a move on. Need some tight overs. Or at least some bit of pressure on the batsman. As if this extended run of flow continues, then we'll see definitely a big score on the cards. Maybe around 70-80. That's played away. And that's pulled away for 4. Another boundary. Dealing in boundaries is Raven. Score moves to 35. Paging Chika Patil. Chika, you are requested to come in the commentary box. Chika, if you are around, please come in the commentary box. 31, 35. Score moves on to 35 with that boundary. Reverse sweep, missed this time. He's on the floor. Just trying to play a bit of a gamble here on the bowler's mind. Has been striking it cleanly when he's playing the conventional strokes. Now trying the orthodox reverse sweep and missing out. That will be wide. Extras. Official scorer Sai Palikar has just joined me. He and his partner Ganapati Navlekar.
been doing the scoring. Another wide. More extras. Full toss. Up in the air. On the bounce and to the left of the field. Can't do much about it. Just will be fetching the ball from the boundary. Score moves to 41. Runs galore here in Tiskusgao. Just that trying to carve it over point, but hitting it down to the long offense. Getting the desired result, a boundary. This time in the air. Field getting underneath. And oh, drop, put down. Maybe the fingertips. Drop chance. And score moves to 42. After completion of 3, it's 42. After completion of 3, it's 42. 42 without loss after 3 overs. Sai Ganesh, Royals, Vasco. Change in bowling, it will be Yuvraj. Swing, missed, dot delivery. Knocked him over, gone. Trying to play it on the onside, missing it completely. And that's gone. Raven has to head back to the pavilion after playing a breezy little cameo. It's 41. 42, in fact. 42 for 1. DJ Chika Patil is in the house. Newman and Shankar. Let's see if he can there's a canteen open there. If you are hungry, if you are thirsty, you can just head in that canteen and have yourself some lovely bit of dishes. Omelette is the specialty that has been told to us. And many more other things. Meanwhile, Shankar, the new man, in. Outside the off stump, and that will be wide. Extras. Have been again and again being watchful and have been commentating on this. Someone should arrange down the ground a workshop for all the players. Usually there's a training for umpires. They pass a test and they are declared as the umpires by GCA. The players should be made aware of the no balls and also the wides, how the line shuffles. When you try to shuffle across, how it changes. That has to be put in their heads. Always arguing with the umpires, but funny banter though. Down the ground, straight to the field though, on the bounce to him. At a long off. Just a single. So far has been a pretty tidy over this. Score moves on to 45. Fourth over in progress. One more to go after this. Down the ground, in the air and gone. Straight to the field.
didn't have to move a muscle. And Shankar has to head back, trying to get some quick runs. He's heading back in the pavilion. It's 45-2. Sai Ganesh Royals Vasco. In the middle. Up in the air in the vacant region. And that will be a maximum to start off. To bowl this final over. 51 for the loss of 2. Here's a quick look at all the sponsors for this tournament. Committee jerseys provided by Pranay Pednekar. 4 semi-finalist jerseys provided by George Burgess. Down the ground. Meanwhile, takes a single. Does Buddy. Score moves to 52. All 4 trophies provided by Sri Anand Viranekar. Anand Verekar. Man of the match trophies provided by Sunil Garad and Vijay Naik. Best bowler by Yogesh Parab. That's big. That is massive. It's out of here. All the way for 6. Score moves on to 58 with that maximum. That's up in the air, but will just be a single. Just a single. Score moves to 59. We'd like to request Mr. Sarfaraz Sheikh to please take his seat on the dais, and would like to request Manjunath to please welcome him with flowers. That's big, but miscued and gone. Straight to the bowler in his own follow through, takes that catch, and the big wicket of Syed Buddy falls. So the new batsman will be facing the delivery next. And just 8 runs have been scored in this last over. Coming back to that list of sponsors, best batsman has been sponsored by Sri Datta Pawar. Man of the match in final, Hanumant Patil. Man of the tournament trophy, sponsored by Lakshman Kaskar. Man of the series TV has been given by Madam Suman Kashitkar. And a big thank you for providing the ground. Special thank you to Sri Swapnesh Gaus, Govind Gaus and Niru Gaus. Thank you very much. New man in, Sher Bahadur Yadav. Needs no introduction. Can he get going? Last 2 deliveries remaining. Good delivery. Yorker length. Chance of run out. Oh, not quite.
Gets the single, gets Asif back on strike. Score moves on to 60. Talking about the next fixture, it will be Gumteshwar Margaon taking on KPM Cricketers Cape. Let's that one go. And that's a dot delivery to end the over. Excellent last over coming to an end. After completion of 5, it's 60. 60 for the loss of 3. So 61 will be the target required to win in 5 overs for Avish Avengers. Sakri again requesting Shri Tattaraj Gauss aka Babu to please come and अगला मुकाबला गुमटेश्वर मरगांव और केपीएम क्रिकेटर्स केपी। दोनों टीमों के कप्तान कृपया आइए, टॉस के लिए जल्दी संपर्क करें। गुमटेश्वर मरगांव और केपीएम क्रिकेटर्स। हेलो हेलो हेलो।
Captain of Gumteshwar Margaon and captain of KPM Cricketers. Both teams captain, please contact in commentary box. Both teams captain, Gumteshwar Margaon and KPM Cricketers. KPM Cricketers. कृपया यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपको बार बार पुकारा जा रहा है यहाँ पर डिसिप्लिन के साथ इस बड़ी प्रतियोगिता को अंजाम देना है। अगर ये ओवर होने से पहले यहाँ पर जो कप्तान उपस्थित नहीं होगा उस कप्तान के अपोजिट टीम को टॉस का निर्णय दिया जाएगा। कृपया ध्यान दीजिए, आपको बार बार पुकारा जा रहा है, आपको यहाँ पर आना चाहिए। चलिए चलते हैं मैदान पर। टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया था अविश एवेंजर्स साक्रीम टीम ने और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया था साई गणेश रॉयल्स वास्को टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए एक तगड़ा टोटल खड़ा कर दिया मैदान पर। 60 रन बनाए हैं पहले 5 ओवर में प्रति ओवर 12 के औसत से और जीतने के लिए 61 रनों का लक्ष्य रखा है साक्रीम टीम के सामने। दोनों टीम की अगर बात की जाए, अविश एवेंजर्स साक्रीम टीम को एक शानदार शुरुआत की आवश्यकता है। ये पहला पावर प्ले का ओवर अगर 20-22 रनों का निकालते हैं तो मैं कहूंगा आसान रहेगा आने वाले 4 ओवर में। और प्रारंभिक जोड़ी मैदान पर युवराज और गौरेश और गेंदबाजी के मोर्चे पर पहला ओवर लेकर उन्नी कृष्णन, एक टेनिस बॉल क्रिकेट में मेहरत, बहुत बढ़िया गेंदबाजी करते हैं, ऑलराउंडर की जगह इनकी टीम में। और जब जब टीम की जरूरत को मद्देनजर रखते हुए उन्नी कृष्णन गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन देखना है पावर प्ले का ओवर 61 रनों की आवश्यकता। पावर प्ले की पहली गेंद, आगे निकले खेलने के लिए, हवा में खेल बैठे थे, पॉइंट के सर के ऊपर से पीछा किया जा रहा है। गेंद को जब तक फील्ड करते, बहुत बढ़िया फील्डिंग, बहुत ही उसी एक्शन में थ्रो कर दिया, निकला सिर्फ सिंगल के साथ अपना खाता खोला है युवराज ने। नाम युवराज है, युवराज को यहाँ पर राज करना पड़ेगा बल्लेबाजी के साथ अपने टीम के लिए। अगर बात की जाए तो अविश एवेंजर्स साक्रीम टीम के लिए 61 रन उतना बड़ा टोटल इस मैदान के ऊपर है नहीं, क्योंकि हमने कल से देखा इस मैदान पर बड़े रन आसानी के साथ पीछा किए हो जाते हैं, इस मैदान पर चेस किया जाता है मैदान पर। लेकिन रात का समय है, देखने वाली बात क्या होगा इस मुकाबले में। ओ चलिए यहाँ पर अगली गेंद पर विकेट निकलते हुए पहला विकेट बैक टू द पैवेलियन, 1 रन 1 विकेट के नुकसान पर 61 रनों के जवाब में। गेंदबाजी ने अच्छी हुई है। पहली ओवर की शुरुआत पहली इनिंग में बल्लेबाजी से सैयद बद्दी ने करी थी। धुआंधार बल्लेबाजी मैदान पर देखने को मिली, एक बड़ा टोटल, एक सम्मानजनक टोटल मैदान पर खड़ा कर चुके हैं। फाइटिंग टोटल मैं कहूंगा, क्योंकि शाम का वक्त है और इस रजनी में जो कि अगर बात की जाए तो बहुत ही बढ़िया ये टोटल माना जाएगा। कल के दिन में अगर बात की जाए तो लगभग 83 रन ये हाईएस्ट टोटल है इस प्रतियोगिता में। रजनी में ये मुकाबला चल रहा है, आज का ये दूसरी रजनी और दूसरे रजनी का ये पहला मुकाबला। म्यूनसिपैलिटी जो कि सेशन का ये मुकाबला आप देख रहे हैं। टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया था साक्रीम टीम ने और पहले बल्लेबाजी करते हुए 60 रन बनाए। निर्धारित 5 ओवर में 61 रनों का लक्ष्य रखा है, लेकिन पहला विकेट निकला है 1 रन मात्र स्कोरबोर्ड पर। नए बल्लेबाज वन डाउन बैटर मंजुनाथ मैदान पर और आगे निकले थे खेलने के लिए। गेंद को थोड़ा सा लाइन थोड़ी सी खींची यहाँ पर और गेंद थोड़े से बल्ले से दूर निकली विकेट कीपर के हाथों में। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी
उन्नी कृष्णन, ये नाम आपको हमेशा देखने को मिलता है अगर बात की जाए तो मैदान के बीच में। और अब देखता है आने वाली गेंद पर क्या होता है। और फिर एक बार उठाकर खेलने की कोशिश, स्विंग एंड मिस, बहुत बढ़िया मिश्रण गेंदबाजी में। तेज जिस तरह से फेंकते हैं उस तरह से मिश्रण करना जानते हैं, गति परिवर्तन करना जानता है। और जब जब गेंदबाज गति परिवर्तन करते हैं, खास करके तेज गेंदबाज, तो बल्लेबाज के लिए दिक्कत यहाँ पर निश्चित रूप से आन पड़ती है। देखना है क्या होगा आने वाले समय में। अभी भी मैच में अगर बात की जाए तो बहुत ढेर सारा मुकाबला बचा है इस ओवर की बात की जाए तो। अच्छी गेंद, बहुत बढ़िया। फिर एक बार गेंद निकलती हुई विकेट कीपर के हाथों में, अंपायर का इशारा वाइड का आता हुआ, अतिरिक्त सिंगल के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर। सिद्धिविनायक क्रिकेटर्स 30 उसगांव की ओर से आयोजित आमदार चषक 2025 और दूसरी रजनी। और फिर एक बार एक पुलर लेंथ की गेंद, यहाँ पर बल्लेबाज बीट हो गए, विकेट कीपर बीट हो गई, गेंद पिछवाड़े निकली है लेग गली की दिशा से, स्क्वायर लेग फाइन लेग पर गेंद निकली 4 रन के लिए। 22 का मिला ये चौवा, महत्वपूर्ण चौवा है ये साकिन टीम के लिए। एक विकेट गंवाने के बाद अच्छी गेंद, बहुत बढ़िया गेंदबाजी। ओवर समाप्त हो गया, एक सफल ओवर समाप्त हो गया यहाँ पर उन्नी कृष्णन का। सिर्फ 6 रन ओवर मिसफील्ड के ऊपर 22 के रूप में, वरना गेंदबाजी बहुत बढ़िया यहाँ पर अगर बात की जाए। 61 रन का जवाब दे रही है टीम। पहले ओवर का खेल समाप्त, पावर प्ले का ओवर समाप्त होता हुआ सिर्फ 6 रन स्कोरबोर्ड पर 1 विकेट के नुकसान पर। मंजुनाथ और युवराज की ये जोड़ी अब कार्य कर रही है, रन बनाने की कोशिश कर रही है। युवराज के ऊपर दारोमदार रहेगा, बल्लेबाजी करना जानते हैं युवराज, और खड़े खड़े शॉट अगर लग जाते हैं इस मैदान पर, क्योंकि बल्लेबाज अगर मिडल करते हैं गेंद को तो गेंद ये सुपर खन्ना की गेंदें इस्तेमाल हो रही है इस टूर्नामेंट में, और गेंद सीमा रेखा के बाहर जाने में देर नहीं लगती। लेकिन वो स्टैंड एंड डिलीवर वाली बल्लेबाजी मैदान पर करने पड़ेगी, क्योंकि सपनों के ख्यालों के ऊपर बंगले नहीं बांधे जाते, इमले नहीं बांधे जाते। आपको परिश्रम मैदान पर करना पड़ेगा, ख्यालों से बाहर निकलकर एक हकीकत की दुनिया में वास्तव बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। ओ स्विंग एंड बेस, फिर एक बार आड़ा शॉट खेलने की कोशिश, अक्रॉस द लाइन, गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान पर। एक अच्छी गेंदबाजी है पूरी, अगर बात की जाए पूरा सेटअप अगर साई का गणेश रॉयल्स वास्को टीम का, ये बड़ी प्रतियोगिता की टीम है। और ये अल्टी पल्टी वाला शॉट लगाने की कोशिश करी, गेंद बल्ले पर आई नहीं, देखते हैं अंपायर का इशारा, लेग बाइट्स का आता हुआ, और एक अतिरिक्त सिंगल खाते में लिखा जाएगा। अब तक तलाश है बाउंड्री की बल्ले के साथ, एक बाउंड्री जरूर निकली है पहले ओवर में वो 22 स्वरूप, लेकिन अभी भी तलाश है वो बड़े शॉट की, वो छक्के वाले शॉट। 5 बड़े छक्के इस मैच में महत्वपूर्ण हो गए साकिन टीम, अविश एवेंजर्स टीम के लिए। ओ फुल टॉस गेंद, इस बार थोड़े से दूर से खेला हुआ, ताकत नहीं थी, टाइमिंग नहीं थी, वहां पर मिला मात्र सिंगल। एक मौका था और अंपायर ने रेफर कर दिया ये बीमर गेंद है, कमर के ऊपर है या नहीं ये थर्ड अंपायर के पास देखने वाली बात जरूर है। लेकिन फिलहाल तो मैं कहूंगा ऐसे मौके आपको बार बार नहीं मिलेंगे। ये फुल टॉस गेंद, आपको बल्ला घुमाना चाहिए था, आपको वो बड़े शॉट के लिए जाना चाहिए था। एक आध बड़ा शॉट निकल आएगा तो मैच फिर एक बार शुरू हो जाएगा मैदान पर। रन ऐसे आपको नहीं मिलेंगे, इसके लिए आपको वो किसी एक गेंदबाज को टारगेट करना पड़ेगा मैदान पर, और रन का पीछा करते वक्त जब प्रति ओवर लगभग 12 के आसपास का रन रेट का चेस आप कर रहे हो, तो आपको हर एक ओवर में एक आध बड़ा शॉट बेहद आवश्यकता पड़ती है। फिलहाल देखा जा रहा है ये बीमर गेंद है या नहीं, कमर के ऊपर है या नहीं। और इट इज अ नो बॉल, यानी कि दोबारा डालनी पड़ेगी ये गेंद, और साथ साथ मिलेगी यहाँ पर फ्री हिट यानी कि लाइसेंस टू किल।
ये हमेशा देखने को मिलता है मैदान पर। अब देखना है गेंदबाजी यहाँ पर क्या किस तरह से होगी और सामने वाली बल्लेबाजी। पहला नो बॉल इस इनिंग का और इस बार उठाया है लेकिन दूरी नहीं है, हवा में जरूर है। खिलाड़ी पहुंचते पहुंचते शॉट एक्स्ट्रा कवर पर गेंद को पकड़ लेते, एक रन और खाते में। फ्री हिट की गेंद भी जा चुके हैं। दूसरा ओवर डाल रहे हैं गेंदबाज सतीश, बहुत बढ़िया गेंदबाजी करते हैं। बात की जाए तो निश्चित रूप से ओ इस प्यार सरपटा शॉट खेलने की कोशिश, गेंद बल्ले का संपर्क हुआ नहीं है। आड़ा ताड़ा शॉट अक्सर हम देखने को मिलते। कभी कभार इस शॉट से मैच टीम जीत भी जाती है, लेकिन कभी कभार ऐसा शॉट दिक्कत पैदा कर देता है, अड़चन उत्पन्न कर जाता है, संकट के घेरे में फंसा देता है टीम को। और ये प्रयास दोनों तरफ से हो रहे बल्लेबाजों से, लेकिन वो शॉट नहीं निकल रहे हैं। और इस बार फुल टॉस गेंद फिर एक बार खेला जरूर, कवर बैक कवर की दिशा में खिलाड़ी आते हैं। रनआउट का मौका यहाँ पर, लेकिन थ्रो को पकड़ नहीं पाए, थोड़े से दूर थे। यहाँ पर ऊंचाई से निकला, 2 रन तब तक निकले जहां रनआउट का रूप में एक विकेट निकल सकता था। 2 रन निकले और टोटल पहुंचा है 13 रन स्कोर बोर्ड पर। ओ इस बार आड़े बल्ले के साथ मिड विकेट के दिशा में खेला है, लेकिन ये शॉट सिंगल से फर्क नहीं पड़ेगा। स्कोरबोर्ड जरूर आगे निकलेगा। दूसरे के लिए पलटे हैं और देखे लीजिए फील्डिंग यहाँ पर देखने को मिली है और 2 रन आसानी के साथ पूरे होते हुए 2 रनों के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 2 ओवरों का अब खेल समाप्त हो चुका है। 15 रन स्कोरबोर्ड पर, अब 18 गेंदों का खेल बाकी है और जीतने के लिए और 46 रनों की और आवश्यकता। 18 डिलीवरीज लेफ्ट एंड 46 रन मोर रिक्वायर्ड टू विन। गेंदबाजी में पहला बदलाव और गेंदबाजी के मोर्चे पर विशाल ये गेंदबाज करते हुए शुरुआत करेंगे इस ओवर की। 15 रन बन चुके, पहले 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। और फिर एक बार अल्टी पल्टी शॉट लगाने की कोशिश। मैं हमेशा कहता हूं बनी तो बनी, नहीं तो अब्दुल गनी, लगा तो तीर नहीं तो फकीर, लगा तो आबाद नहीं तो बर्बाद। लेकिन ये गेंदें बर्बाद करने वाला शॉट है। आपको सीधे बल्ले से रन बनाने की कोशिश करनी पड़े। आप चेस कर रहे हैं बड़े टोटल का। और इस बार लेग स्टंप के ऊपर थी गेंद, देखते हैं बल्ले से संपर्क हुआ या नहीं। फिलहाल तो 1 रन और लेग बाइट्स का इशारा, ये भी एक्स्ट्राज में गिने जाएंगे। यानी कि कुल सिर्फ 3 रन निकले हैं जो कि बल्ले के साथ, बाकी सब जो रन निकले हैं वो एक्स्ट्राज के रूप में। इससे पता चलता है कितनी अच्छी गेंदबाजी मैदान के अंदर हो रही है वास्को टीम की ओर से। फिर एक बार प्रयास था उठा कर खेलने का, लेकिन गेंद ऊपर उठे नहीं, बल्ले के निचले हिस्से से लगी मिड विकेट की दिशा में। बहुत बढ़िया फील्डिंग, बहुत बढ़िया थ्रो सीधा विकेट कीपर के हाथों में। देखिए किस तरह से फील्डिंग सजाई जा रही है। और साई गणेश रॉयल्स वास्को की टीम जब रन बने हैं तो निश्चित रूप से वो खर्च करने में हिचकिचाएंगे नहीं, क्योंकि बड़ा टोटल है और इस सिंगल दुक्के से कुछ बात नहीं बनेगी। अब छक्के चाहिए।
ओ फिर एक बार स्विंग एंड मिस, तेज रफ्तार वाली गेंद, रनआउट का मौका है, विकेट जरूर निकलेगा क्योंकि मंजुनाथ के बल्ले से रन नहीं निकले तो सैक्रिफाइस उन्होंने विकेट कर दिया है। युवराज ओपनिंग के लिए गए, वो अभी लड़ रहे हैं मैदान पर, लेकिन उनके बल्ले से भी रन नहीं बने। लेकिन यहाँ से अब आपको पांचवें गियर की बल्लेबाजी करनी पड़ेगी क्योंकि लगभग ये तीसरा ओवर प्रगति पर है और रन लगे हैं सिर्फ स्कोर बोर्ड पर 17। नए बल्लेबाज मैदान पर मोहित युवराज का साथ देने के लिए, देखता है अब क्या कुछ परिणाम बदल जाएंगे मैदान पर। ओ फिर एक बार स्विंग एंड मिस, क्या गेंदबाजी हो रही है। अरे गेंदबाज पूरी तरह से अपनी जान हथेली पर लेकर गेंदबाजी कर रहा है क्योंकि उन्हें पता है हल्का सा मैच अगर स्टार्ट हो गया, एक आध बड़ा शॉट आ गया तो बल्लेबाज के कंधे ऊपर उठ जाएंगे और बड़े शॉट लगते रहेंगे मैदान पर। ओ फिर एक बार ये जड़ में डाली वाइड यॉर्कर, लगभग ब्लॉक हॉल में पूरी तरह से यहाँ पर चारों खाने चित कर दिया था बल्लेबाज को। एक अच्छा ओवर समाप्त हो गया है, 3 ओवरों का खेल समाप्त। स्कोर बोर्ड पर सिर्फ लगे हैं 17 रन, स्कोर बोर्ड पर 2 विकेट के नुकसान पर 44 रनों की आवश्यकता, 12 गेंदों का खेल बाकी। बारह गेंदों का खेल बाकी है और 44 रनों की आवश्यकता और गेंदबाजी के लिए विनोद विल्सन, एक अनुभवी खिलाड़ी, एक लीजेंड खिलाड़ी, ढेर सारा क्रिकेट का अनुभव, ढेर सारी क्रिकेट की सेवा करी है इस खिलाड़ी ने और हमारे साथ भी बहुत सारा क्रिकेट, एक विनोद विल्सन जो कि गेंदबाजी के मोर्चे पर इनका नाम जुबा पे आते हैं आपके सामने। वो लगभग 95, 2000, 2003 का वो यादें ताजा हो जाएगी तब जब वो है न, अगर बात की जाए यंग थे तब शानदार वह प्रदर्शन आता था उनका, लेकिन आजकल भी बहुत बढ़िया गेंदबाजी करते हैं अपनी टीम के लिए। ये गोवा राज्य के नगीने कुछ ऐसे है, बात हमेशा जिक्र हम करते हैं, शंबा का जिक्र करते हैं, विनोद विल्सन का जिक्र करते हैं, विकास देसाई का जिक्र करते हैं, हेमंत शेटगांवकर का। गेंद वाइड के साथ शुरुआत विनोद विल्सन की इस ओवर के 1 रन और खाते में एक्स्ट्राज में और बढ़ोतरी, टोटल पहुंचा 18 रन। ये कुछ अनुभवी खिलाड़ी है जिन्होंने क्रिकेट की भरपूर सेवाएं गोवा राज्य से करी है। मुख्तार कादरी है, आनंद बद्री है, ऐसे बहुत सारे क्रिकेटर। ओ बहुत बढ़िया गेंद, स्विंग एंड मिस, क्या गेंद देखिए, रिप्ले में आप देख सकते हैं किस तरह से गेंदबाजी यहाँ पर हो रही है। बल्लेबाज के लिए पूरा रनों का अकाल पड़ चुका है मैदान पर। जिस जहां पहली इनिंग में शायद जिस तरह से रन बने, ऐसा प्रश्न उपस्थित हो रहा है कि क्या यही पिच है वो। ओ नहीं नहीं, फिर एक बार प्रयास था, फिर एक बार बल्ले को लगी, उस बार शरीर के साथ टकराई है। 1 रन और खाते में जुड़ा, 1 रन के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 19 रन स्कोरबोर्ड पर। मैच की अगर बात की जाए पूरी तरह से सिकंजा कसा है साई गणेश रॉयल वास्को टीम ने, इतने दूर से आए हैं, आसानी से आपको मौका नहीं देंगे और इसी सोच के साथ बल्लेबाजी पहली भारी भरकम करी और उसके बाद गेंदबाजी में क्या कह रहे, 4 चांद लगाए अपने टीम के लिए मैदान पर। ओ बल्ले के ऊपर से लगी, खिलाड़ी वहां पर तैनात, सीधे उनके हाथों में एक्शन देखे इनकी आपको दिखाई जाएगा यहाँ पर रिप्ले में किस तरह से उन्होंने एक्शन करी है। शायद बल्लेबाज को चका रहे थे कि जब भाई गेंद बाउंड्री लाइन तक पहुंची है, लेकिन बल्लेबाज को पता था ये हाथ में चली गई है गेंद और एक विकेट का पतन। अभिजीत नए बल्लेबाज।
और इस बार आते ही बल्ले के साथ कांटेक्ट हो गया, मिडल हो गई गेंद, लेकिन वो शॉट नहीं निकला है। अभी भी तरस रहे हैं बड़े शॉट के लिए। एक बाउंड्री जरूर लगी है, वो भी 22 की, लेकिन अब तक बल्लेबाज से कोई नहीं बल्लेबाज रन बना पाया। शायद ऐसा लग रहा था साकेंग की टीम मैदान पर लड़ेगी इस टीम के सामने, लेकिन लड़ने से पहले मैं कहना चाहूंगा हथियार डाल डाल दिए हैं। सामने वाली गेंदबाजी इतनी तिखी हो रही है, किसी भी बल्लेबाज के बल्ले से रन नहीं बने हैं, और रिकॉग्नाइज बल्लेबाज से अगर रन नहीं बने तो निचली वाली बल्लेबाजी क्या करेगी। गेंद डॉट निकलती हुई नजर आ रही है, मुकाबला बड़ा होता जा रहा है। ओ ये थोड़ी सी एक मिश्र स्लोवर वन डिलीवरी थी विनोद विल्सन की। मिश्रित गेंदबाजी पूरी तरह से मैच में अब कब्जा हो चुका है साई गणेश रॉयल्स टीम का इस मैदान पर। पहली बल्लेबाजी करते हुए सैयद बद्दी की बहुत ही शानदार बल्लेबाजी, 25 रन बनाए। जो अगर बात की जाए रेवण की, अड़े बल्ले के साथ खेला, मिड विकेट की दिशा में डिप में खिलाड़ी एक तैनात है, एक ही रन मिलेगा, एक रन के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ चौथे ओवर का खेल समाप्त। 20 रन स्कोरबोर्ड पर, आखिरी 6 गेंदों का खेल बाकी और 41 रनों की और आवश्यकता। आखिरी ओवर लेकर यासीन, 6 गेंदों का खेल बाकी, 41 रनों की आवश्यकता। मैच की अगर बात की जाए सिर्फ औपचारिकता बाकी इस मुकाबले की, मैं कहूंगा यहाँ से, क्योंकि बल्लेबाजों ने काफी निराश कर दिया है अविश एवेंजर्स साकिम टीम ने। पहले तो गेंदबाजों की पिटाई और उसके बाद बल्लेबाजी थोड़ी सी खामोश रही इस मैदान पर। अच्छी गेंद, एक रन और खाते में जुड़ जाएगा। एक रन के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ अमित गांवकर यहाँ पर आ चुके हैं, उनका हार्दिक हार्दिक स्वागत। आपसे दरख्वास्त है आप बैठकर यहाँ पर इस मुकाबलों का आनंद लीजिए। 5 गेंदें बाकी इस इनिंग की। आड़े बल्ले के साथ खेला, लेकिन वो शॉट अभी भी नहीं लग रहा है, यानी कि मैच लगभग वास्को टीम के पक्ष में जा चुका है। लेकिन गेंदबाजों की तारीफ करनी पड़ेगी, कोई भी गेंदबाज ऐसी गेंदबाजी नहीं कर रहा है कि किसी एक बल्लेबाज के खाते में बड़ा शॉट लिखा जाए। दिक्कत थी, टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। ओ तेज गेंद, इस बार लेग स्टंप से बाहर, अंपायर का इशारा वाइड का आता हुआ, अतिरिक्त और एक सिंगल, और अतिरिक्त सिंगल के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 23 रन स्कोरबोर्ड पर। रेवण ने जो रन बनाए 25 लगभग, वो उसके भी 2 रन यहाँ पर कम है अभी तक। और इस बार खेल दिया है, देखने वाली बात होगी। इस बार गेंद निकली, इस बार निकली है 4 रन के लिए, चौवे के लिए गेंद निकली सीमा रेखा के बाहर। लेकिन कहना पड़ रहा है इस शॉट के बाद बहुत देर कर दी मेहरबा आते आते। शायद ये पहले ओवर से इस तरह से शॉट लगते तो कई बात बन सकती थी मैदान पर, लेकिन अब हार के कगार के ऊपर खड़ी हो चुके हैं अविश एवेंजर्स सांकड़ीम की टीम। और फिर एक बार अच्छी गेंद, 1 रन मिलेगा, 1 रन के साथ टोटल 28 रन स्कोरबोर्ड पर। 61 रनों के जवाब में सिर्फ 28 रन। और ये गेंद लगभग निकली और एक सिंगल। अब औपचारिकता बाकी सिर्फ इस मुकाबले की। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी, बहुत ही शानदार गेंदबाजी, पूरी तरह से इस श्रृंखला में पूरी पैक टीम उतारी है साई गणेश रॉयल्स वास्को टीम ने। आज की रे रजनी म्युनिसिपालिटी टीमों के लिए
और इस बार हवा में खेल बैठे, विकेट निकला आखिरी गेंद पर और साथ साथ एक बड़े जीत के साथ अगले दौर में प्रवेश कर चुके हैं साई गणेश रॉयल्स वास्को की टीम। अभिनंदन साई गणेश रॉयल्स वास्को टीम का और आभार आविश एवेंजर्स साक्रीम टीम का जिन्होंने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। आप